Okay. Abhishek Kumar, what is brainstorming? 2 month बाद क्लास किए फर्स्ट डे आज. This is your first class? नो मैम 2 month बाद क्लास किए हैं फर्स्ट डे. क्या क्या अभिषेक? मेरे अंकल का डेथ हो गया था मैम, हॉस्पिटल में थे 1 month से. All right. इधर प्रशांत राज. Yes, ma'am. Brainstorming. Yes, ma'am. बता. कितना देर वेट करना पड़ेगा ये भी बता दीजिए प्रशांत. अभिनय. बी क्विक. नहीं पता तो सीधा बोलिए ना. प्रशांत होगा या नहीं होगा? मैम याद नहीं. क्या याद नहीं आ रहा मैम. याद नहीं आ रहा? क्योंकि पढ़े नहीं है इसीलिए याद नहीं आ रहा. प्रतीक आनंद. प्रतीक आनंद ब्रेनस्टॉर्मिंग. Pratik, waiting for the answer. Pratik, can you hear me or not? Deepa Kumari. Deepa, can you hear me? ज्वाइन ही क्यों करते हैं ये लोग? जब अटेंडेंस भी नहीं मिल रहा, क्लास भी ध्यान से नहीं सुनते, तो फिर किस काम का ज्वाइन करना? ऋषभ. I can't tolerate these students. Pratik Anand, I am removing you. Anku, I can expect answer from you. Anku, can you hear me? Online student getting my voice or not? Sagar and Mai confirm? Yes ma'am, आ रही है आवाज. Yes, हमको chat तो मिल गया. आपका क्या वो ऑडियो में प्रॉब्लम है? Fine. हर्ष. हर्ष. Getting my voice? Fine. Rishabh getting my voice? Rishabh getting my voice? Yes ma'am. Please answer. Leave it. हाँ, इधर से बताइए. I will hardly entertain online student if this will be your performance. मैम ऑनलाइन में और भी बच्चे हैं, वो लोग दे सकते बच्चे आंसर देते हैं वो भाई हमेशा देंगे, बाकी तो क्या सोते रहेंगे? बेटा डोंट ज्वाइन.
सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लीड करते हैं ये ऐसे बच्चे, द मोटिवेशन खत्म हो जाता है पढ़ाने का। यस, आंसर फ्रॉम दिस साइड। हाँ, यू सेकंड लास्ट। Using a brainstorm of problem. It is a conference technique in which group attempt to find a solution of a specific problem by organizing all the ideas. Very good. You were there in last class? What is your name? Uday. Very good, Uday. चलो, सारा गुस्सा आपकी वजह से शांत हो गया। Okay, let's proceed now. After brainstorming, second technique is nominal group technique. Second technique is nominal group technique, NGT. Nominal group technique. नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हो रहा था, जो भी बोल रहे हैं बाकी ग्रुप मेंबर भी सुन रहे हैं, लेकिन एनजीटी में क्या होता है, एक दूसरे को सुन नहीं सकते क्योंकि सीक्रेटली सब लोग राइट डाउन करके देते हैं अपना आइडियाज। ठीक है, एनजीटी में। ठीक है, और लास्ट में उसका रैंकिंग होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है एनजीटी में। फाइन, राइट डाउन। एनजीटी इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग। एनजीटी इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग। NGT is a structured मैम group. टॉपिक क्या बोली थी मैम? Second technique है, first technique था brainstorming. We are discussing technique for improving group decision making, in which first one was brainstorming, second is NGT, nominal group technique. In that, write down NGT is a structured group meeting. NGT is a structured group meeting which restrict verbal communication मैम among एनजीटी इज members, नॉर्मल, which restrict verbal communication among members during decision making process. ठीक है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है अमंग ग्रुप मेंबर्स, एक दूसरे से कोई वर्बली बात नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन। द ग्रुप लीडर आउटलाइंस the group leader outlines the problem requiring decision. Then third point, each member writes down his ideas silently. Each member writes down his ideas silently and independently and presents his best single idea on the problem. Then next point, when all the members write their ideas, these are presented for discussion. And evaluation before the group members. Next point, the members are asked to rank the various ideas. The members are asked to rank the various ideas for decision making.
for decision making, and the decision is arrived, Ma'am, the member are asked to the members are asked to rank the various ideas for decision making, and the decision is arrived at the basis of this ranking. On the basis of this ranking. On the basis of this ranking. राइट डाउन करके यहाँ पे एक दूसरे का हम लोग सुनेंगे नहीं, जैसे यहाँ जितने मेंबर्स बैठे हैं, प्रॉब्लम जैसे कल का सेम प्रॉब्लम आप रखिए, अब वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में सब लोग खुलेआम बोल रहे थे, एक दूसरे का सुन रहे थे, उससे थोड़ा आइडिया आप लोग को भी मिल रहा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कोई अपना आइडिया चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीक्रेटली कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स नहीं है, एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे हैं। एक सिंगल चिट दिया गया है, उस चीट पे आप लिख रहे हैं, अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, और फिर सब कलेक्ट होकर पहले तो रैंकिंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, वो रैंकिंग करेगी और रैंकिंग के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन, ठीक है। इसमें एनजीटी में ऐसा होता है। देन आगे लिखिए। तो मैम इसमें सिर्फ रिटर्न और ओरल का ही ना अंतर है, मतलब सारे ग्रुप मेंबर तो इसमें ही पार्ट लेंगे और इसमें ही पार्ट सिर्फ लेंगे। रिटर्न और ओरल का सिर्फ डिफरेंस है। हाँ, पार्टिसिपेशन का भी है, यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को सुन नहीं रहे, आइडियाज लिखने के बाद पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आगे लिखिए। इफ द ग्रुप डज नॉट रीच एग्रीमेंट, इफ द ग्रुप डज नॉट रीच, मैम नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, एनजीटी का ही नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है। इफ द ग्रुप डज नॉट रीच एग्रीमेंट, it repeats the ranking, and voting procedure until the group reaches some agreement, until the group reaches some agreement. फिर से, if the group does not reach agreement, it repeats the ranking and voting procedure until the group reaches some agreement and makes a decision. Ma'am, until the group reaches some agreement and मैम makes a फिर decision. रिपीट कर दीजिए मैम। If the group does not reach agreement, ठीक है, चिट में लिखने के बाद डिस्कशन ओपन हो रहा है, अब अकॉर्डिंगली फिर रैंकिंग हो रहा है। तो रैंकिंग में मान लीजिए किसी का अगर दो राय अगर हो रहा है, तो जब तक एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे नहीं, तब तक ये प्रोसीजर रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। वही चीज मैं लिखवा रही हूँ। इफ द ग्रुप डज नॉट रिच एग्रीमेंट, इट रिपीट्स द रैंकिंग, and voting procedure until the group reaches some agreement and makes a decision. Done, Ritik? यस मैम। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो भी डोमिनेटिंग नेचर का होता है वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी आइडियाज सब लोग लिख रहे हैं, लिख करके अपना आइडियाज दे रहे हैं, ठीक है। प्लस जो माइनॉरिटी वाला जो प्रॉब्लम था, माइनॉरिटी का भी थॉट प्रोसेस वहां पे रहेगा, अपना वो थॉट एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। राइट डाउन द एडवांटेज। इट प्रिवेंट्स स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इट प्रिवेंट्स, एडवांटेज में पॉइंट नंबर 1, इट प्रिवेंट्स, गौरव, इट प्रिवेंट्स, write down, strong personality types from dominating the group. Second point, provides forum, FORUM, for the expression of the minority viewpoints. Minority viewpoint.
डन। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट टेक्निक इज डेल्फी टेक्निक, DELPHI। डेल्फी टेक्निक पहले कभी पढ़े हैं? हाँ? DELPHI, डेल्फी टेक्निक, DELPHI। मैम फुल फॉर्म क्या है इसका? नहीं, डिस्कशन हो रहा है बस। क्या कोई कुछ पूछे अभिनव? डेल्फी टेक्निक और सर्वे टेक्निक। क्या डेल्फी टेक्निक? मैम फुल फॉर्म क्या है मैम इसका डेल्फी का? अरे डेल्फी टर्म है, कोई फुल फॉर्म नहीं है, एक्रोनिम नहीं है। डेल्फी इज द टर्म, डेल्फी टेक्निक, DELPHI। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डेल्फी टेक्निक नहीं आया था? नो मैम। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप? डेल्फी टेक्निक एक तरीके से आपका फोरकास्टिंग मेथड है, फोरकास्टिंग टेक्निक है। इसमें जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन या डिमांड कितना बढ़ने वाला है फ्यूचर, तो फ्यूचर फोरकास्टिंग टेक्निक है ये डेल्फी टेक्निक। ये आप बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एक तो ये HRM में पढ़ रहे हैं, सॉरी ये OB में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में HRM में भी पढ़िएगा, ठीक है, फिर मार्केटिंग में भी पढ़िएगा। ये डेल्फी बहुत सारे सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये पता चला ये फ्यूचर फोरकास्टिंग का एक तरीका है, ठीक है, फोरकास्टिंग का एक तरीका है, टेक्निक है। कैसे करते हैं इसमें देखिए, ये जनरली क्या होता है, जो बड़ा बड़ा ब्रांचेज है, ब्रांचेज इन द सेंस कोई इंडिया में है, कोई इंडिया से बाहर है, एक जगह मीटिंग हो नहीं सकता, तो उस केस में क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब शॉर्ट ग्रुप बनाते हैं और क्वेश्चन आयर तैयार करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आयर मेल पे भेजा जाता है एक्सपर्ट्स को, 15 to 16 एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो क्वेश्चन आयर फिल करके वापस से उस ग्रुप के पास आता है, फिर समरी तैयार होता है, फिर जब तक बाकी एक्सपर्ट का वापस से समरी बनने के बाद सबके पास दोबारा से जाता है, जब तक सब लोग अग्री नहीं करते तब तक अगेन ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस चलते रहता है। यानी क्वेश्चन आयर बना करके सारे एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा। और ये ऐसा कब होता है, ये टेक्निक कब होता है, जब ब्रांचेस अलग अलग जगह पे है, बहुत बड़ा कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अलग अलग ब्रांचेस है, डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट कंट्रीज में है, ठीक है, तब ये डेल्फी टेक्निक यूज होता है। अंडरस्टूड? राइट। इन डेल्फी टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, in Delphi technique of decision making, members do not have face-to-face interaction for group decision. In Delphi technique, मैम थोड़ा धीरे धीरे। in fact जल्दी जल्दी करिए, जल्दी मतलब तेज हाथ चलाइए, फिर मैं स्लो वापस से रिपीट कर रही हूँ, बट बी लिटिल बिट फास्टर। इन डेल्फी टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ऋतिक, in Delphi technique of decision making, members do not have face-to-face interaction for group decision. Face-to-face interaction for group decision. Done? Full stop. The decision is arrived. The decision is arrived at through written communication. The decision is arrived at through written communication in the form of filling up questionnaire. In the form of filling up questionnaire. Often through mails. M-A-I-L-S. Often through mails. Full stop. In the conventional Delphi method, a small group design a questionnaire. A small group design a questionnaire which is completed by a larger respondent group, designed a questionnaire. Designs a questionnaire, repeat कर रही हूँ दोबारा से सुनिए, in a conventional Delphi method,
A small group designs a questionnaire, ठीक है, which is completed by a larger respondent group, which is completed by the larger respondent group. Next point, the results are tabulated. The results are tabulated and used in developing a tabulated मतलब compared किया जाता है सारे results को, ठीक है. The results are tabulated and used in developing a revised questionnaire, which is completed by the larger group, ठीक है. Next point, the result of the original pooling, ठीक है, are fed back FED to the respondent group to use in subsequent responses, ठीक है. Last point, this procedure is repeated until the issues are narrowed. Narrowed. NARROWED, narrowed. Done. Comma, responses are focused or consensus reached. Consensus मतलब सहमति जब तक सबकी नहीं हो जाती. Reached, हाँ, ED, rich, REACH, लास्ट में ED, reached, ठीक है. तो ये था आपका डेल्फी मेथड. जैसे मान लीजिए आप ये कर सकते हैं कि अभी 1 साल के बाद फैशन ट्रेंड क्या होगा, ठीक है. इस टाइप सा कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आयर तैयार किया जाता है. इसलिए तो बोला जा रही है फोरकास्टिंग टेक्निक, ठीक है. अब नेक्स्ट आपका है टेक्निक डायलेक्टिक डिसीजन मेथड. एक्सक्यूज मी मैम. मैम यहाँ पे मैम एक पॉइंट है मैम, द डिसीजन इज अराइव्ड एट थ्रू रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग क्वेश्चनर ऑफ्टन थ्रू मेल. मैम तो इसका क्या मतलब है मैम? ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट तो पहले हो गया था. कोई और बताइए जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. कौन बता पाएगा जो एक्सप्लेन किया हुआ है? फर्स्ट आई गिव चांस टू द क्लास स्टूडेंट. गौरव आप बताइए. मैम क्या था, फिर से रिपीट करना ऋतिक? डेल्फी मेथड एक्सप्लेन करिए जो एक्सप्लेनेशन हुआ था, उसी में उसका आंसर भी छिपा हुआ है. वैसे इसका क्वेश्चन है कौन सा पॉइंट ऋतिक? फर्स्ट ही पॉइंट है ये मैम क्वेश्चन, द डिसीजन इज अराइव्ड एट थ्रू रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग क्वेश्चनर ऑफ्टन थ्रू मेल. हाँ, एक्चुअल में ये पॉइंट है, लेकिन बेसिकली उसको डेल्फी मेथड ही समझ में नहीं आया, तो यू डू एक्सप्लेन. मैम डेल्फी मतलब का मतलब मैम फ्यूचर में फोरकास्ट कर दे. बस. और इसमें फेस टू फेस में इंटरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. और यहाँ पे मैम रिटन कम्युनिकेशन से डिसीजन अराइव होता है. रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू होता है. और बेसिकली डेल्फी का प्रोसीजर क्या होता है? डेल्फी डिसीजन मेकिंग, कैसे हम लोग डिसीजन पे पहुंचते हैं. इतना पॉइंट सही है. फोरकास्टिंग मेथड है, ठीक है. रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है. और नहीं मैम फिलिंग क्वेश्चनर, ठीक है.
फिर से दोनों वही आ गए। माही योर आंसर। यस मैम। यस मैम, डेल्फी मेथड में मैम ये इसमें हम लोग ये एक फोरकास्टिंग मेथड होता है और एस्टिमेटिंग मेथड होता है। देन मैम इसमें मतलब जितने भी मैम डेल्फी मेथड में डिसीजन मेकिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है ग्रुप के बीच में, और डेल्फी मेथड में आपको डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक फॉर्म दिया जाता है, मतलब फिलिंग किया जाता है क्वेश्चन आयर्स को हम लोग फिल करते हैं। देन मैम फिर जो स्मॉल ग्रुप्स जो है वो लोग लार्जर, फिर वो लोग देन रिस्पॉन्ड करते हैं जितने लार्जर ग्रुप है उन सारे क्वेश्चन आयर्स को। एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं दोनों भाई बहन कि ये कहाँ होता है एप्लीकेबल, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, यस फेस मैम, टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ठीक यस है, मैम, बिग कंपनीज, इसमें लार्ज डिफरेंट कंपनीज। स्टेट में उसकी ब्रांचेस फैली हुई है, डिफरेंट कंट्री में उसकी ब्रांचेस फैली हुई है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आयर मेथड के थ्रू, मेल के थ्रू जाता है। अंडरस्टूड ऋतिक? क्वेश्चन ma'am. आयर प्रिपेयर करने वाले स्मॉल ग्रुप हैं, वो ग्रुप मेंबर एक्सपर्ट्स को भेजते हैं क्वेश्चन आयर, वो फिल करके वापस सेंड करते हैं और फिर एक समरी बनाया जाता है। वो जो स्मॉल ग्रुप के मेंबर्स जो क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करते हैं वो समरी बनाते हैं और फिर से उन एक्सपर्ट के पास सर्कुलेट किया जाता है, तब तक जब तक एक प्रॉपर कंसेंसस तक पहुंच ना जाए। प्रॉपर कंसेंसस कहने का मतलब सबकी एग्रीमेंट सर्टेन डिसीजन पे जब तक ना हो तो ये प्रोसीजर रिपीट करता चला जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेथड है आपका डायलेक्टिक डिसीजन मेथड। फोन दीजिए तो आप यहाँ दीजिए, सामने यहाँ रख दीजिए फटाक से, जैसे बोला जा रहा है। हाँ, डायलेक्टिक मेथड, DIALECTIC, डायलेक्टिक डिसीजन मेथड। देखिए, हाँ कौन सा सी? दो सी है, DIALECTIC, डायलेक्टिक। इसमें क्या होता है, दो ही अल्टरनेटिव लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम दिया जाता है, राइट, प्रॉब्लम इज गिवन, ओनली टू अल्टरनेटिव इज गिवन, ठीक है। मान लीजिए अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, ठीक है, फिर अजम्पशन, ये तो चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, पहले लिखिए इसी तरह टेबल बनाने। सबसे पहले शुरुआती लाइन ओपनिंग स्टेटमेंट लिखिए, वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, वन ऑफ द, बी लिटिल बिट फास्टर, one of the common problems in group decision making is that, one of the common problem in group decision making is that group members one of the common problem in group decision making is that group members converge too quickly, कन्वर्ज टू क्विकली। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं। अलग अलग व्यूज रहता है, लेकिन ग्रुप में डिसीजन होने के बाद बहुत जल्दी हम लोग एक पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। दैट वी मीन बाय कन्वर्ज टू क्विकली ऑन वन अल्टरनेटिव, while overlooking others which may be more promising than the one chosen, full stop के बाद dialectic decision method has been evolved to overcome such problem, has been evolved to overcome such problem, has been evolved to overcome such problem। इसी तरीके से टेबल बनाइए, यहाँ प्रॉब्लम लिखिए, फिर बाइफर्केट करिए बॉक्स बना के, बॉक्स के अंदर लिखिए प्रपोजल ए जनरेटेड, प्रपोजल बी जनरेटेड, ठीक है। एक साइड प्रपोजल ए जनरेटेड, प्रपोजल बी जनरेटेड, फिर एरो दे करके assumption
ऐसे ही आगे वापस से बॉक्स बनाइए. Assumption underlying A identified. Assumption underlying A identified. A के नीचे assumption underlying A identified यानी पहले proposal, then assumption, proposal A identified, उसके नीचे arrow, उसके बाद assumption underlying A identified, फिर इसके नीचे assumption underlying B identified. नहीं समझ आ रहा? Assumption underlying A identified, right now, assumption underlying, right? Hug them, right? Hug them. Yes. Underlying नहीं लिखना, underlying A identified, assumption underlying B identified. ठीक है? Done. Underline मतलब क्या? A problem है, समझ लीजिए. A problem है, उसके नीचे assumption दिया है, which we need to believe. ठीक है? फाइनेंस में पढ़े होंगे ना बहुत सारा. Assumption कि टैक्स फ्री होना चाहिए. Assumption that rational customers होने चाहिए. इतना assumption वगैरह पढ़े होंगे ना. इस certain theory का ये assumption है. तो assumption what do you mean by that? कि we need to believe that. ठीक है? उसमें कोई theoretical proof and all कुछ available नहीं है. बस we need to believe that these all statements are true. ठीक है? This is the meaning of that statement. Assumption underlying A identified. उधर लिख लिए assumption underlying B identified. उसके बाद लिखिए presentation of pros and cons. हाँ, उसके नीचे जस्ट इसके नीचे फिर से एरो दीजिए. presentation of pros and cons of A. इसी के नीचे presentation यहाँ पे लिख लिए ना assumption. फिर यहाँ पे लिखिए presentation of pros and cons. इसके नीचे presentation of pros and cons of B. इसके नीचे presentation of pros and cons of A. ठीक है? मुझे लगा इट वाज वर्किंग. और फिर नहीं ठीक है. ऑफ प्रोस एंड कॉन्स के बाद ऐसे करके सपोज ये पूरा लास्ट पॉइंट है आपका, मर्ज करके चॉइस एक आएगा आपका. चॉइस 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 सारा चीज जैसे लिखे हैं ना, उसके बाद लास्ट में मर्ज कर दीजिए इन दोनों को. और इसके यहाँ चॉइस दोनों मिला के एक पर्टिकुलर चॉइस लेंगे आप. चॉइस क्या क्या हो सकता है? या तो आइदर ए और बी. नंबर 1 लिखिए आइदर ए और बी. ए और बी या तो क्या यहाँ पे चॉइस में आगे तीन चॉइस होगा. चॉइस जो है तीन चॉइस होगा. या तो ए या तो चूज करेंगे या बी चूज करेंगे. ठीक है? या फिर दोनों का मिक्सचर चूज करेंगे या तो तीसरा कोई अल्टरनेटिव चूज कर लें. ठीक है? तो ये तीन चॉइस होगा. ये लिखना है आपको A और B. First choice, online student getting or not? No Yes, ma'am. Yes ma'am. मैम प्रपोजल भी में भी सेम लिखना है मैम. रुकिए, आप फटाक से जाइए. बैग में मेरे मार्कर है. Yes ma'am. सोनी मैम होंगी, फर्स्ट चेन में है मार्कर. फटाक से लेके आइए. देखिए ओनली टू अल्टरनेटिव. बुलेट पॉइंट फटाफट बनाइए. लिखिए ओनली टू अल्टरनेटिव्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. only two alternatives have been proposed for the sake of simplicity. ठीक है? Done. For the sake of simplicity. Yes, ma'am. Next point, next point है participants identify the explicit and implicit assumption underlying each proposal. Assumption
अब अंडरलाइन नहीं कर दीजिएगा, अंडरलाइन ईच प्रपोजल. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप्स देन ब्रेक्स इनटू सब ग्रुप्स. डिस्चार्ज भी ठीक है. मैम नेक्स्ट द स्टडी ऑफ टू स्टडी द प्रॉब्लम. फिर से रिपीट कर रही हूँ. द ग्रुप देन ब्रेक इनटू सब ग्रुप्स टू स्टडी द प्रपोजल इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम. Done? Done, Ritik. Yes, ma'am. Yes, next, the entire group meets after this exercise for final choice. For final choice. Done? Last, the choice may be made in term of a particular proposal on its pros and cons of the particular proposal based on its pros and cons. Or there may be compromise मतलब mixture of different proposal, or new alternatives may be proposed. Done? Or new alternative may be proposed. देखिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम आया पहले, ठीक है, फटाफट. यहाँ पे क्या था, प्रपोजल, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, यहाँ था प्रपोजल ऑफ बी. मैम साइड वाला नहीं दिख रहा. Is it visible now? ठीक है. ठीक है, फिर यहाँ पे assumption, ठीक है, assumption अंडरलाइन ए, यहाँ पे assumption अंडरलाइन बी. ठीक है, ठीक है ना. ऑनलाइन स्टूडेंट इधर, ऑफलाइन को तो बताइए. विजिबल, visible or not? ऑनलाइन बच्चे स्टक हो गए. visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visual, ma'am. Assumption के बाद है presentation of pros and cons. ठीक है, of A. यहाँ presentation of pros and cons of B. उसके बाद मैंने कहा था एक हम लोग चॉइस हमारा होगा, और वो चॉइस क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट वन इज आइदर ए और बी, सेकंड वन इज कंप्रोमिस, मिक्सचर लिखिए, या कंप्रोमिस ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ऑफ ए और बी, और लास्ट में आपका एनी अदर अल्टरनेटिव. ये टेबल बनाने के लिए मैंने कहा अल्टरनेटिव. Done? Now clear, Pratyay? Now clear? Yes, ma'am. Yes. ये डायग्राम बनाना है और उसी चीज का थ्योरी इसके बाद लिखिए आप लोग. मैम चॉइस के बाद क्या लिखे हैं मैम? चॉइस के बाद ए और बी, कंप्रोमिस ऑफ ए और बी, सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? यस मैम. ए और बी, कंप्रोमिस ऑफ ए एंड बी, और लास्ट में आपका न्यू अल्टरनेटिव. दैट्स इट फॉर टुडे. एंड अटेंडेंस मैं बता दूं आज किसका किसका बना है. 20, 29, 61, 51, 10, 2, 59, 77, 9 एंड
2। ठीक है, इतने लोगों का मिला है, बना है ऑनलाइन मोड में, बाकी ऑफलाइन का तो बनेगा ही बनेगा सारे का। 9 जन है।